Good morning, students. How are you? I hope you are well at your home. Students, yesterday I told you about Bhagat Singh, and now I will tell you about one another most important freedom fighter, Azad. Yes, you are absolutely right. Chandrasekhar Azad. I'm going to tell you about Chandrasekhar Azad, and after it, I will tell you short story of Azad. Friends, Chandrasekhar Azad was one of the most revolutionary freedom fighter of India. One of the legendary figure in Indian history is Chandrasekhar Azad. His name was Chandrasekhar Tiwari, but he was known as Azad. His lifespan was 23rd July 1906. He took birth 23rd July 1906 to 27 Feb 1931. That was the day when he passed away. He was born at Bhavra, Madhya Pradesh in India. Actually, he was not from Madhya Pradesh. His family belongs from Uttar Pradesh, Unnao, but there was a dry zone. That's why his family came in Bhavra, Madhya Pradesh. So he took birth in Bhavra, Madhya Pradesh in India. He was the son of Sitaram Tiwari. His father name was Sitaram Tiwari and mother's name was Jagrani Devi. Actually, he was a Brahmin. He belongs from Brahmin family, and his mother wanted to make him a scholar of Sanskrit. So he wanted to send him Kashi Vishwanath for study, but he didn't go there. He joined Hindustan Republic Association with Ram Prasad Bismil, and after it, Bismil Saab showed that he is a very good fighter. He changed Hindustan Republic Association to Hindustan Socialist Republican Army in 1928 with the help of Bhagat Singh. His sole aim was to make India independent again. He only wanted that India will be free. He left his home for country. He was only 15. He was arrested for being the part of non-corporation movement organized by Gandhiji. He was only 15. Actually, he was 13 when Jallianwala Bagh took place, and he was very angry from this. That's why he joined a non-corporation movement with Gandhiji. He fought all his courage when he was encountered by police, and his efforts added. Encountered by the police, he was in Alfred Park with his friend Sukhdev Tiwari, and he tried to escape his friend. His efforts aided Sukhdev's escape. He also made sure of not being caught. He did not want to caught by British police. That's why he also made sure of not being caught alive by killing himself. In Alfred Park, Allahabad. So he killed himself. He is always remembered as a courageous gem and a vital hand in providing freedom for India, Pandit Chandrasekhar Azad. Friends, now I tell you about Chandrasekhar Azad. He is one of my favorite freedom fighter. Each and every freedom fighter is my favorite. मैं एक कहानी बताता हूँ आपको। 23 जुलाई 1906 को सीताराम तिवारी और जगरानी देवी के घर में तीसरी संतान पैदा हुई, जिसका नाम उन्होंने रखा चंद्रशेखर तिवारी। चंद्रशेखर तिवारी बचपन से ही कुछ नटखट प्रवृत्ति के थे। 13 साल की जब उम्र में उन्होंने और जलियांवाला बाग हत्याकांड सुना, जिसमें 1600 से ज्यादा लोग मारे गए, उन्हें बड़ा गुस्सा आया।
जब वह 15 साल के हुए, उन्होंने देश के लिए गांधी जी के द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन ज्वाइन किया और बहुत सारे लोगों के साथ में उनको भी पहली दफा पुलिस के द्वारा, ब्रिटिश पुलिस के द्वारा पकड़ा गया। जब मजिस्ट्रेट के सामने उन्हें लाया गया और उनसे पूछा गया कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उन्होंने बड़े फख्र से और तुर्क मिजाजी से जवाब देते हुए कहा कि मेरा नाम है आजाद। मजिस्ट्रेट ने पूछा कि तुम्हारे पिता का नाम क्या है, तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरे पिता का नाम है स्वतंत्रता। मजिस्ट्रेट ने जब वापस से उससे पूछा कि तुम्हारा पता क्या है, तो उन्होंने कहा मेरा पता है जेल। वहां खड़े हुए उस कोर्ट में जितने भी भारतीय थे, उन्हें बड़ा फक्र महसूस हुआ उस 15 साल के युवा पे, लेकिन मजिस्ट्रेट को इससे बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने 15 कोड़ों की सजा, उस समय 15 साल के एक बच्चे को 15 कोड़ों की सजा उन्होंने दी। और जब वो कोड़े उसके ऊपर लगाए जा रहे थे, आजाद के ऊपर लगाए जा रहे, तो प्रत्येक कोड़े पे उनकी आवाज आती थी, भारत माता की जय। खून में ही उनके ऐसा उबाल था बचपन से कि 15 साल की उम्र में ही उन्होंने ब्रिटिश पुलिस की मार भी खाई और भारत माता की जय की, लेकिन उफ नहीं की। उनके बाद में उन्होंने यह निश्चय किया कि वह कभी भी पुलिस के हाथ नहीं आएंगे और इस वजह से उन्होंने अपने आप को पुलिस से दूर ही रखा। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं, इसके बाद में रामप्रसाद बिस्मिल से वो मिले, जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक थे। चंद्रशेखर आजाद से वो बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की सदस्यता उन्होंने उनको दी। 1925 के अंदर, क्योंकि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के लिए पैसा चाहिए होता था और पैसा इधर उधर से चोरी चकारी करके ही वो लेते थे। 1925 के अंदर काकोरी ट्रेन लूटी गई जिसमें अंग्रेजों का पैसा था। चंद्रशेखर आजाद इसके मुखिया थे। उस समय बहुत सारे सदस्य हैं वो पकड़े भी गए, लेकिन किसी तरीके से चंद्रशेखर आजाद है वो वहां से बच निकले। उस समय हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन लगभग खत्म हो चुकी थी। उसके बाद भगत सिंह से मिल करके भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने वापस से और एक टीम बना करके हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को नाम दिया था 1928 में, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। लाला लाजपत राय भी इनसे काफी और खुश थे उस समय। लाला जी की मृत्यु होने पे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और सुखदेव ने मिलकर के जॉन सैंडर्स को मार दिया और भगत सिंह का भागने का वहां से पूरा प्रबंध चंद्रशेखर आजाद ने किया। असेंबली में बम गिराने के बाद में जब भगत सिंह ने खुद को सरेंडर कर दिया और ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया, तो भगत सिंह को बचाने के लिए उस समय और वो छिपते हुए इलाहाबाद आए और कोशिश भगत सिंह को बचाने की। इसी दौरान अल्फ्रेड पार्क के अंदर उनके साथी थे सुखदेव तिवारी। ये सुखदेव वो सुखदेव नहीं है, सुखदेव तिवारी वो भी थे। सैकड़ों पुलिस वालों के साथ में अल्फ्रेड पार्क में आजाद साहब को घेर लिया गया था। आजाद साहब चाहते थे कि वो किसी तरीके से हाथ ना आए, बहुत कोशिशें करके उन्होंने और सुखदेव को वहां से बच निकालने में कामयाबी हासिल की। आजाद साहब बहुत अच्छे निशानेबाज भी थे और वो और लोगों को भी तैयार करते थे झांसी से 15 किलोमीटर दूर जंगल में, लेकिन उस समय उन्हें नहीं मालूम था और उनके पास में गोलियां इतनी ज्यादा नहीं थी। उसके बावजूद भी डट करके उन्होंने अंग्रेजों का सामना किया। जब उनकी पिस्टल में अंतिम गोली थी तो उन्होंने कहा, दुश्मन की गोलियों का जवाब हम देंगे, आजाद है हम, आजाद ही रहेंगे। उन्होंने अपनी अंतिम गोली अपनी कनपटी पे चलाई और भारत माता की जय बोलते हुए, भारत माता की मिट्टी को नमन करते हुए अपने प्राण है न्यौछावर कर दिए इस मिट्टी के लिए। आज भी हम उस हीरे को याद करते हैं और नमन करते हैं। मैं नहीं जानता कि लोग भगवान में, अल्लाह में, खुदा में, गुरु नानक साहिब में
या ईसा मसीह में विश्वास करें या ना करें, ये उनका पर्सनल ओपिनियन है। लेकिन जो फ्रीडम फाइटर हैं, मैं हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करता हूं और ये चाहता हूं कि इनकी इज्जत में, इनके मान सम्मान में कभी कोई कमी ना रहे। कई जगह पे किताबों में और किन्हीं बुरे लेखकों, अच्छा लेखक नहीं कहूंगा मैं, बुरे लेखकों ने इन्हें आतंकवादी कहा है। तो एक देशभक्त के लिए आतंकवादी जैसे शब्द शोभा नहीं देता। शेर हैं ये और शेर की तरह ही जिए हैं। आज इन्हीं की बदौलत हमारा हिंदुस्तान आजाद हुआ है। थैंक्स एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। अच्छा लगे तो प्लीज आप भी इनके बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करें और ऐसी कहानियां अपने बच्चों को सुनाएं, उन्हें देशभक्तों के बारे में प्रेरित करें। थैंक यू वेरी मच।